Namaste everyone, welcome to our YouTube channel. I am Pooja Sharma. Today's video is a podcast, and the guest for today's podcast is the Neeraj Arora. For those who don't know him, he is the founder of Edu91, an online learning platform for students who are pursuing professional courses like chartered accountancy. He himself qualified his chartered accountancy in the year 2011, and since then he has been passionately teaching students. He has deep interest in subjects like taxation, auditing, strategic management, Excel, value investing, and he is a passionate stock market enthusiast. Apart from all this, he is a part-time angel investor and a full-time father of two cute daughters. With his knowledge and hard work, he was able to become financially Atmanirbhar by the age of 33, and in this podcast, we are going to learn from him and his life experiences. Starting from the mistakes he did with his money, so you, the listeners, the youngsters, do not repeat those mistakes, to investing in index funds and how he's able to make his kids smart about personal finance from a very young age. I personally learned a lot in this session and absolutely loved recording this conversation with him. Do check out his YouTube channel Fin91, where he uploads videos about stock market and investing. He also has a personal vlog channel where he shares his life as a son, as a father, as a husband, and as a teacher and as an entrepreneur. You can also connect with him on Instagram and Twitter. I'll put the necessary links in the description below. Now you all must be wondering, how do I know him? Well, I was a student too. I met him in 2012 and he used to teach me tax. We've been working together since 2013. Yeah, it's quite a long time. I started out as a student and intern, and now we're business partners. It has been a hell of a ride, guys. We are going to talk about this story some other time. I really look up to him and I've learned so many things from him. He's my mentor, my friend, a brother, and a father figure for me. And I can't thank him enough for the constant support he has given me. I'm really thankful that he took out time and recorded this podcast with me. Without further ado, let's dive right into the podcast and gain some useful insights from him. Make sure you listen to the full podcast. You can listen to the podcast while you're driving, while you're working out, or while you're cleaning. Basically, listen to the full podcast. Let's get started. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हैं हमारे साथ नीरज अरोरा सर। वेलकम नीरज सर, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी लाइफ? मेंटल स्ट्रेस कितना है आजकल लाइफ में? धन्यवाद शर्मा जी अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। अच्छा लग रहा है काफ़ी। मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि आपके पॉडकास्ट पे आ पाऊँगा, बट इट फील्स गुड। एंड लाइफ बहुत ही यार हमेशा की तरह एक्साइटिंग चल रही है। एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई चीज़ें सिखा रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही चलती रहेगी। सर, क्या एक्साइट करता है आजकल आपको और क्या नई चीज़ें सीख रहे हैं आप? मैं इस समय कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टिंग की जानकारी लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिखा पाऊँ लोगों को। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं चल रही हैं, और साथ साथ में जो एक और जर्नी शुरू हो गई अपनी मेडिटेशन की और मेंटल पीस की और फिज़िकल वर्कआउट की, जिसमें आप हमारे गुरु हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। सर ऐसे नहीं सर, एक गुरु हमेशा गुरु ही रहता है और शिष्य हमेशा शिष्य ही रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। सर, मेरे को शुरुआत से शुरुआत करनी है, एकदम बचपन से आपके। जैसे इंडिया में आपको पता है कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा ज्ञान दिया नहीं जाता है, स्कूल के जो करिकुलम है उसका भी पार्ट होता नहीं है। जिस दैट कि इंसान के पास या तो जब बिल्कुल ही पैसे नहीं होते या फिर बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते, तब वो सोचता है कि उस पैसे को ढंग से कहीं लगाया जाए। और बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे कि लोग अपने पैसे को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये जानना है कि आपका रिलेशनशिप कैसा था मनी के साथ? क्या बहुत बचपन में ही आपको जो है समझ आ गई थी कि हाँ जी, पैसा इंपॉर्टेंट है, कमाना भी इंपॉर्टेंट है और उसको सही जगह लगाना भी इंपॉर्टेंट है? क्या आपको बचपन में ही समझ आ गया था ये? नहीं नहीं, बिल्कुल भी बचपन में ऐसा कुछ नहीं भाई समझ आया था। मेरे पैसे के साथ पहला फॉर्मल इंटरेक्शन में बोलूँगा तो यही देखा घर वालों को जो है सामान खरीदते हुए, बेचते हुए, अपने दिनचर्या के सामान खरीदते हुए, बेचते हुए। उसके बाद ये देखा कि भाई पापा बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, चेक डिपॉजिट हो रहा है। ये बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली में जैसी काम होता है। तो कभी कभी हम भी चेक डालने चले गए या कभी बैंक से पैसा निकालने चले गए, राइट। ये इंटरेक्शन था पैसे के साथ। ये पता था कि भाई पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। घर वालों ने यही बताया था कि बड़ी दिक्कतें हैं जीवन में, पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसे के पेड़ पे लग रहे हैं। और जो एक 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 नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में
बातें सुनी सुनी और सुनाई जाती हैं, वही सारी बातें सुनी और सुनाई गई थी हमें भी। बट ये है कि एज सच कभी ना मतलब मम्मी पापा ने कभी ये फील नहीं होने दिया कि भाई हमारे पास जो है वो पैसा नहीं है या पैसे की किसी तरह से कमी है, मतलब कभी फीस भरनी पड़ी या कुछ होना पड़ा तो वो हुआ, वो स्मूथली हुआ। हाँ, सुनाया जाता था 2-3 बार कि भैया फीस जा रही है पढ़ लो, कोचिंग की ट्यूशन की फ़ीस जा रही है पढ़ लो, या कुछ चीज़ लेनी है तो ये इतनी महंगी है, ये तो अभी दिक्कत वाली है, या महंगी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखा करो। जो बेसिक एक मैं बोलूँगा ना कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बातचीत जो चलती है पैसों को लेके, एग्जैक्टली वही बातचीत जो है होती थी। तो सर आपको कब समझ आया कि एक्चुअली में कि यार पैसा अब कमा लिया है, मतलब ठीक है आ रहा है, अब ऐसे दिक्कत नहीं है कि महीने का खर्च नहीं चल पाएगा, लेकिन उसको सही जगह पर लगाना, वो आपने सर कब सीखा और कब फिर आपको वो बोलते हैं ना कि एक रेवलेशन हुआ कि यार ये तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सही राह पे चलना चाहिए। तो ऐसा है शर्मा जी के 2011 में मैंने अपना सीए क्वालिफाई किया, जनवरी 2011 में। और जनवरी 2011 में जब सीए क्वालिफाई किया ना, तो ऑनेस्टली तब था कि भाई सीए बनने का बड़ी अच्छी जॉब मिलती है, बहुत सारा पैसा आएगा। स्टॉक मार्केट की तब मैं बोलूँगा कि लड्डू नॉलेज थी। लड्डू नॉलेज होती है कि मेरा मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था हर्ष गोलचा, तो उसके घर में ना मारवाड़ी मारवाड़ी था वो, राइट। तो उसके घर में जो है हमेशा स्टॉक मार्केट चलता रहता था, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका छोटा भाई और वो खुद। तो ये स्टॉक मार्केट में ऐसे रमे हुए थे ना, तो ये यहाँ से मुझे पहली बार पता चला कि भाई स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। तो तब ये नहीं पता था फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे जैसे सीए करनी शुरू करी तो सीए में थोड़ी बहुत बातें पता चली कि अच्छा अकाउंट, क्योंकि ये हर्ष की जो मैं बात बता रहा हूँ ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड था ये मेरा। तो वहाँ से हमने ये चीज़ें सीखनी शुरू करी थोड़ी बहुत कि भाई स्टॉक मार्केट होता क्या है बेसिक। अच्छा सपने दिखाते हैं ना लोग में, ये भाई देखो इतने पैसे कमा लिए, झुंझुनवाला साहब का नाम तब भी चलता था, ये राकेश झुंझुनवाला है, ये भी सीए है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। कुछ मैंने शेयर्स खरीदे, कुछ मैंने आईपीओज़ में भी जो है अप्लाई किया था। मुझे याद है डीएलएफ का आईपीओ मैंने जो है अप्लाई किया था, और उस समय पे शेयर्स अलॉट भी बहुत आसानी से हो जाते थे। तो मेरे डीमैट अकाउंट में डीएलएफ के शेयर्स भी आए थे। बहुत पुरानी बात है, आप देखिए एक बार डीएलएफ का आईपीओ कब आया था। तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट से जान पहचान बढ़ी। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट बन गया था। मैंने बोला लड्डू नॉलेज थी बिल्कुल, जैसे एक आम आदमी जो एक न्यू कमर होता है ना, उसको पता चलता है हाँ भाई स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की नॉलेज थी। सीए क्वालिफाई किया तो पहले साल मैंने 2 जॉब्स बदली। तो पैसा ना को इनफ्लो कोई बहुत ज़बरदस्त आ नहीं रहा था ऐसा कि कहीं इन्वेस्ट करें। जो अगर अपने घर के खर्चे पूरे हो जाते तो वही वही बहुत लगता था कि भाई चलो घर के खर्चे बहुत हो गए। क्योंकि मेरी जॉब मैंने पहले ही 4-5 महीने में मैंने 2 जॉब्स जो हैं वो चेंज कर दी थी। और उसके बाद 2 जॉब चेंज क्या कर दी, दूसरी जॉब छोड़ने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि जॉब नहीं करेंगे, अपना कुछ काम करेंगे, अपनी जिस फील्ड में हमें मज़ा आता है वो करेंगे। तो मैं उसके अंदर गया। वहाँ पे भी पैसे का आउट इनफ्लो जो है कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं था, ओके ओके इनफ्लो था, वेरी ओके, राइट। मतलब वही जैसे बोलते हैं ना हैंड टू माउथ वाला हिसाब किताब था कि भैया आ रहा है खा रहे हैं, अगले दिन जा रहे हैं काम पे, फिर आ रहा है फिर खा रहे हैं, फिर अगले दिन जा रहे हैं काम पे। 2016-17, सीधा 2011 से 2016-17, इन 5-6 साल टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा इनफ्लो नहीं था। फिर 2016-17 से इनफ्लो आना शुरू हुआ। हमने बहुत सारे जो है, आपको तो सारी स्टोरी बताइए शर्मा जी, आप तो गवाही दे सकते हो इस बात की। तो फास्ट ट्रैक बैचेस थे, आईटीओ पे बैचेस हुए, 4 बच्चों से जो क्लास शुरू हुई थी वो ऑडिटोरियम्स तक पहुंची, 200 250 बच्चे फेस टू फेस बैच में आने लग गए। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी 2018 में। तो जब पैसे का इनफ्लो बढ़ा ना, अब एक्स्ट्रा पैसा जो है, जैसे बोल सकते हैं कि अब ऐसा पैसा जिसके बारे में पता नहीं था कि करना क्या है, वो सब चीज़ें आने लग गई। देन आई थॉट कि भाई एफडी का तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि जब आप टैक्स रेट आपके ऊपर इतना लग रहा होता है तो आपको समझ इतनी तो क्लैरिटी होती है कि भैया एफडी में कराओगे तो ये आपकी इन्फ्लेशन जो है आपको पैसे को ख़त्म कर देगी, खा जाएगी, क्योंकि उसमें हर साल जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट भी कोई बहुत खास तो आ नहीं रहा है। तो तब मेरे को दिमाग लगाना पड़ा कि अब इस पैसे का करना क्या है। उसके बाद हमने थॉट्स दिए, सोचा समझा, इन्वेस्टिंग की क्लासेस अटेंड करी, बुक्स पढ़ी, जहाँ जो सिखाया जा रहा था वो सीखा, अपना थॉट प्रोसेस बनाया। जो मेंटोर्स फेस टू फेस मिल सकते थे उनसे ज्ञानवर्धक बातें जो हम निकाल सकते थे वो निकाले। जो मेंटोर्स फेस टू फेस नहीं मिल सकते थे उनके बारे में पढ़ा, उनका थॉट प्रोसेस पढ़ा, उनके बारे में जाना, कुछ बातें सीखी। एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। आई स्टार्टेड पार्किंग माई मनी इनटू इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में मैंने सबसे पहले पार्क करना शुरू किया। अभी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में स्टडी कर ही रहा था, स्टॉक्स के बारे में स्टडी कर ही रहा था। अचानक से 2020 आ गया, राइट। उससे पहले मैंने स्टॉक्स में बहुत कम पैसा डाला हुआ था। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरे पास मेजर पैसा जो है उस समय फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर आपके इंडेक्स फंड में था। और जब 2020 आया तो मुझे लगा कि भगवान ने लॉटरी लगा के भेजी है।
देखिए, मैं समझता हूँ कि कोरोना ने सबको नुकसान पहुँचाया है, लेकिन एक इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ, तो एक लॉटरी लगा के ही एक्चुअली में जो है वो भेजी गई थी। और उस लॉटरी का मेरे लिए वो बहुत लकी टाइम रहा, क्योंकि मेरे पास फंड्स भी थे और स्टॉक मार्केट की हालात भी जो है वो बहुत पतली हो चुकी थी, बहुत नीचे आ चुकी थी। आई थिंक 7,800 तक जो है निफ्टी जा चुका था। तो मैंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और काफ़ी पैसे मैंने फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट से उठा के जो है वो ट्रांसफ़र करे। आज की डेट में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, मतलब मेरे हिसाब से जिस तरह के मेरे रिस्क एपेटाइट है या मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है। और आगे आने वाले 15-20 साल तक मैंने जो है उस पोर्टफोलियो को समय देना है। रिव्यू करते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन समय देना है 15-20 साल तक। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एक अच्छा अपने लिए रिटायरमेंट कॉर्पस और साथ साथ में कुछ चैरिटी के लिए पैसा ज़रूर इकट्ठा कर लेंगे। तो सर, जैसे जब से 2016 से 2021 के बीच में कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी करी हैं आपने अपने पैसे को लेके जिनको आप रिग्रेट करते हो आज भी, और आपको लगता है कि यार काश मैंने वो ना करी होती? और मतलब जो हमारी ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, क्या आप उनको गाइड करना चाहोगे कि भाइयों ये मत करना, ये गलती भयंकर मत करना अपने भयंकर पैसे के साथ? भयंकर भयंकर छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करी मैंने लाखों की मिस्टेक्स करी हैं। सबसे पहली मिस्टेक मैं बताना चाहूँगा कि 2011 से 2016 तक मैंने म्यूचुअल फंड्स में, एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। किसके कहने पे? हमारे जो बैंक रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं ना, उनके कहने पे। प्लीज़ डोंट डू इट। आप म्यूचुअल फंड पे रिसर्च करें और बहुत आसान है। आप 5-6 घंटे मुझे दें, मैं आपको 5-6 घंटे में म्यूचुअल फंड में चैंपियन बना दूंगा। आप शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे कि ओके, इन पांचों में से कुछ लेना है, इन तीनों में से कुछ लेना है। आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 एएमसीज हैं, 2000 के आसपास म्यूचुअल फंड की स्कीम है। तो एक आम आदमी से देख के ना परेशान हो जाता है। और आपको सिलेक्शन के टाइम पे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लार्ज कैप कैटेगरी की बात करते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं, सिलेक्शन के टाइम पे मैं आपको इतना सिखा सकता हूँ कि आप फर्स्ट 3 अपने पास लेंगे कि इन तीनों में से मुझे चूज़ करना है, राइट? तो ये मेरी गलती थी कि मैंने वहाँ पे जो है अपने जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं ना बैंक्स में, कि चलो जी चलो, हम बताएंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे शुरू करनी है। थैंक गॉड बहुत छोटा अमाउंट था, ठीक है, बट वो मेरी एक मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक, फाइनेंशियल मिस्टेक्स की बात चल रही है या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बताऊँ या पूरे फाइनेंस से रिलेटेड बताऊँ सर, शर्मा जी? सब पूरे फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे के एक साथ क्या हाँ, गड़बड़े करी एक आपने? एक गलती मैंने ये करी, मैंने कंट्री क्लब की मेंबरशिप ली थी 50,000 रुपए की। और वो बिल्कुल इसे बोलते ना कि पैसों को लिटरली ऐसे पकड़ के और नीचे से माचिस की तिल्ली लगा देना। तो वो 50,000 रुपए की मिस्टेक मुझे आज तक अखरती है। 2 गलतियाँ। तीसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, वो मेरे को बिल्कुल जो है वो रास नहीं आई हैं। ऑल्दो लोगों को रियल इस्टेट बहुत अच्छा लगता है, मेरी जो रियल इस्टेट में गलतियाँ हुई वो बहुत भयंकर भयंकर हुई हैं। एंड मेरे पास 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज की डेट में लाइबिलिटी बनी हुई है। आपको ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लाइबिलिटी क्यों बनी हुई है? बिकॉज वो मॉल्स के अंदर है, तो मेंटेनेंस जाती हैं और आज की डेट में कोई रेंटल वगैरह ऐसा सच आ नहीं रहा है। और तो वो एक बड़ी एक मिस्टेक है। मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो मुझे मिस्टेक नहीं लगती हैं क्योंकि वो लिक्विड भी हैं और उनसे रेंटल भी ठीक ठाक आ रहा है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी मॉल में लेना इज़ अ बिग मिस्टेक, बिग 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 मिस्टेक। शायद कोई समय रहा होगा जिसमें जिस समय पे उनको रिटर्न मिला होगा, और शायद वो शहर अलग रहे होंगे, शायद वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स अलग रहे होंगे। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉल में जो मेरी 1-2 प्रॉपर्टीज़ थी, उनको मैंने अपने ऑफिस की तरह जब यूज़ कर रहा था, जब तक मैं यूज़ कर रहा था, तो मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे मैं रोज़ जाता था, रोज़ वहाँ से जो है कुछ ना कुछ यूटिलिटी हमें मिलती थी। ओके, अब जब से कोरोना आया है, तब से वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ जो है मुझे लगने लग गई है। और एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसकी जो डेवलपर थे वही अलग ही लेवल के निकले, कुछ डूब डाब गई। तो बस रियल एस्टेट की ये मिस्टेक्स है, कंट्री क्लब की एक मिस्टेक है। उसके बाद ये मैंने आपको जो बताया म्यूचुअल फंड जो मैंने शुरू कर दिया था, ये एक मिस्टेक है। स्टॉक मार्केट के बारे में ना पढ़ना, इन्वेस्टिंग के बारे में ना जानना, अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करना स्किल्स को लेके, पर्टिकुलरली इन्वेस्टिंग की लर्निंग अगर मैंने 2011 में शुरू कर दी होती तो मुझे लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो और अच्छा होता। बट मैं उसको एक लर्निंग मानता हूँ, और उसको उसी लर्निंग से जो है आज जो भी कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो इसी रिग्रेट की वजह से कर पा रहे हैं कि भैया सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे नहीं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, और भी कुछ मिस्टेक्स रही होंगी डेफिनेटली, बट ये मेजर मिस्टेक्स है। जैसे मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ, मुझे 3-4 चीज़ें जो हैं मेरे सामने बिल्कुल घूमने लग जाती हैं। ये 3-4 चीज़ें जो मेरे सामने घूमने लग जाती हैं, जिसमें ये कंट्री क्लब आता है, वो म्यूचुअल फंड की एसआईपीज़ आती हैं, और साथ साथ में अपनी ये रियल एस्टेट की कुछ गलतियाँ नज़र आती हैं। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मेरे सामने घूमने लग जाती हैं। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शायद कुछ लोग बोल भी सकते हो ये कैसी मिस्टेक है, बट भाई यही है जो मुझे रिग्रेट लगती है। हाँ जी। हम्म। तो सर, वो जो आपने एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वाली हम्म। बात है, वो तो आई थिंक कहीं ना कहीं
हर कोई गुजरता ही है उस फेज से कि थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू होता है, तब इंसान को लगता है कि चलो इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो सबसे पहले बैंकर ही लोग जो हैं वो आते हैं आपके सामने, हाँ, बैंकर को पता होता है और कि हमारे क्योंकि अकाउंट इन में सबके पैसे कितने पास, हैं। हाँ करेक्ट, उन सबको पूरा ट्रैक रहता है कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, कितना जा रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, कितना मतलब एवरेज बेसिस पे आप ईयरली मेंटेन कितना करते हो। तो वो वही वाले अमाउंट के ऊपर बोलते हैं कि आप इस अमाउंट से शुरू कर दीजिए। तो मैंने भी सेम चीज करी थी, और मेरे पास उस टाइम तो पैसे नहीं होते, तो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी आप मुझे हर महीने 2,000 तो दे सकती हो ना, आपके पैसे आप मुझे दे दो, मैं लगा दूंगी इन्हें कहीं पे और आपको रिटर्न दूंगी मैं। तो मैंने तो ये बोला था अपनी मम्मी को, मम्मी ने दे दिया, फिर शुरू कर दिया, हुआ इन्वेस्ट करा। फिर जब आपने पढ़ना शुरू करा तो जाहिर सी बात है आपने वो नॉलेज मेरे साथ भी शेयर करी। फिर हमने सबसे पहले आई थिंक हमने साथ में ही फिर उसको बंद कराते कि सबसे पहले इसको बंद कराते हैं और उन जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जो थोड़ी सेफ हैं और बेटर हैं। विदाउट नॉलेज एक्टिव फंड्स में तो इन्वेस्ट करना बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। राइट। सर दूसरी चीज जो आप बोल रहे थे रियल एस्टेट के बारे में, हम्म लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्ड करके इन्वेस्ट करने में। तो अभी आप क्या सजेशन करते हो कि भाई अभी इन्वेस्ट करने का समय है, या फिर उन्हें पैंडेमिक की सिचुएशन सेटल हो जाए तब इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या देखो ये क्या ना, कहना है रियल आपका? एस्टेट मुझे लगता है कि ना एक फुल टाइम, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक फुल टाइम जॉब है यार। राइट। और मैं किसी भी फुल टाइम उसमें जा ही नहीं सकता, इन्वेस्टिंग में किसी भी तरह से नहीं जा सकता। तो जो जा सकता है, जो भाई सारा दिन बैठ सकता है, मेरा एक फ्रेंड है वो रियल एस्टेट से बहुत उठा है। तो वो क्या करता है, अब तो वो क्या करता है, वो ज़मीन लेता है, उसमें मकान बनाता है, बेचता है। पहले उसने नॉर्मल डील्स करी, फिर उसके बाद उसने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। तो उसको फुल टाइम वहाँ पर रहता है, ही नोज़। मुझे एक्चुअली क्या है ना कि ईज़ ऑफ इन्वेस्टिंग भी नहीं है रियल एस्टेट में। आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10 मिनट का काम है, आप बैठो, इंटरनेट खोलो, इन्वेस्ट हो गया। रियल एस्टेट में इतनी डॉक्यूमेंटेशन, इतनी मेंटेनेंस, इतनी चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। राइट। फिर एक बड़ा टिकट साइज़ भी है। और मैं बोलूँगा कि इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स, एंड स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट डेट म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको रियल एस्टेट जितना ही रिटर्न चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन तो अपार्टमेंट्स में तो मिलती नहीं। कैपिटल एप्रिसिएशन भूल जाओ मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे जो समझ आया या मैंने अपनी लाइफ में जो देखा, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ। अपार्टमेंट में कैपिटल एप्रिसिएशन है ही नहीं। मेरे फादर साहब ने 7-8 साल पहले एक अपार्टमेंट खरीदा था, शायद 8-9 साल हो गए होंगे। जितने का खरीदा था आज उतने का भी नहीं बिकता वो। और जबकि कहने के लिए भाई वो ठीक है, फरीदाबाद के पॉश एरिया है और ये सारी चीज़ें हैं, बेच के दिखा दो आप उतने का भी। राइट। और उसके 6,000 रुपये पर मंथ की मेंटेनेंस है। आप किराए पे देते हो, आपको 20,000 रुपये का, 20-25,000 रुपये का आपको किराया मिलता है, 20-22 हज़ार रुपये का आपको किराया मिलता है। मान के चलो 1 करोड़ रुपये की कॉस्ट है उस अपार्टमेंट की। अब आप बताओ क्या होगा उसका, क्या होगा उसका रिटर्न आप देखो ना कितना। इससे बड़ी आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, आपको जो एक फिक्स्ड मतलब कहने के लिए होता है कि भाई चलो हम एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं ना कितना परसेंट उससे रिटर्न निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग जो हैं वो स्टॉक्स की तरफ और म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुख करें अपना। और वहाँ पे छोटा टिकट साइज़ है, और मुझे लगता है मकान ना एक लाइबिलिटी बन जाता है एक समय के बाद। और फिर अपना अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस होता है। अब कई लोग भावुक होते हैं, अपने सर पे अपनी छत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मैं तो शर्मा जी, आपको तो आइडिया है ही भाई, हम तो आज भी रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। एक बार मैंने ट्विटर पे लिख दिया तो लोग बाग सरप्राइज हो गए थे। तो मैं अभी भी किराए के घर में रहता हूँ। राइट। और तो मेरे पास रेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने उनको किराए पे चढ़ा के अपने लिए अलग से किराए पे ले रखे। क्यों? क्योंकि भाई जिस घर में मैं रहता हूँ उसकी कॉस्ट जब मैं देखता हूँ, मैं खरीदूंगा उसको, तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैं इतना बड़ा टिकट साइज़ ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ, इतना बड़ा अमाउंट जो मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरे पास अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो छोटे टिकट साइज़ के, कंपैरेटिवली वो छोटे टिकट साइज़ के हैं। तो वो छोटे टिकट साइज़ वाले ठीक है, उनको हमने रेंट पे दे रखा है, उनसे इनका रेंट निकल जाता है। और बहुत जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक और मुझे पर्सनली मुझे जो फील होता है, मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूँ। मेरे को कल यहाँ रहने का मन नहीं है, मैं हटना चाहता हूँ यहाँ से। और अपार्टमेंट कल्चर में अगर आप बात करते हैं तो अपार्टमेंट में हर रोज़ नए तरह के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं नई फैसिलिटी के साथ। अभी कल ही मैं बोर्ड देख रहा था, कोई नए अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड वर्क फ्रॉम होम। राइट। अभी गोदरेज वाले लेके आ रहे हैं भाई रिजॉर्ट स्टाइल अपार्टमेंट। अभी कोई अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं जी, एयर प्यूरीफायर लगे होंगे जी पूरे अपार्टमेंट के अंदर। आपके अपार्टमेंट के अंदर होंगे ही, वो जो मेन अपार्टमेंट गार्डन वाले होगा वहाँ पे भी एयर प्यूरीफायर। तो वाई नॉट, वाई नॉट। अब वो खरीदने जाओगे आपको 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का पड़ेगा। किराए पे लेने जाओगे आपको 50,000, 60,000, 70,000 महीने का पड़ेगा। यहाँ पे ज्ञानवर्धक लोग आ सकते हैं कि सर इतनी तो सर आप मकान की ईएमआई दे दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई मुझे पालना ही नहीं है ना मकान को, मुझे पालना ही नहीं है उस मकान को। मैं ईएमआई दूँ 30 साल के लिए, 20 साल के लिए मैं ईएमआई बनवाऊँ? मैं किराया दे के बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपार्टमेंट्स में कैपिटल एप्रिसिएशन आज की डेट में तो मुझे नहीं दिखता। मेरी नॉलेज बहुत कम है रियल एस्टेट में, मेरे एक्सपीरियंस बहुत खट्टे हैं रियल एस्टेट के, इसलिए शायद मैं बोल रहा हूँ कि अपार्टमेंट में मुझे तो भाई आज की डेट में तो कोई ऐसा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं दिखता। मैं रेंट पे रह के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग, मतलब मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ वो सही डिसीजंस ले रहा हूँ। तो ठीक है। और बाकी
इनकम पे, आपकी इनफ्लो पे, इन चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है। मैं खुश हूँ रेंट पे रह के, और मैं आगे से रियल एस्टेट में कान पकड़ लिए हैं, कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। कभी मन करता है फार्म हाउस ले लो भैया, बना लो बढ़िया सा, उसके अंदर एकदम मतलब स्विमिंग पूल भी हो और 2-4 जर्मन शेफर्ड भी घूम रहे हों, राइट, और अपना छुट्टियाँ मना जाओ। बट क्यों? आप ये रेंटल पे लोगे, आपको आराम से 10,000 15,000 नहीं तो 20,000 रुपये पर डे पे मिल जाएगा। आप महीने में कितने दिन ये काम कर सकते हो? जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ जकूज़ी लगा हुआ है। जब से हम लोग आए 1-2 बार मैंने यूज़ किया होगा बस। मिष्टी चीकू ने 1-2 बार और यूज़ कर लिया होगा, दैट्स इट। तो 6 महीने में अगर आपको 4 बार जकूज़ी में जाना है तो भैया आप बड़े से बड़ा रिजॉर्ट हायर कर सकते हो, और उस रिजॉर्ट के अंदर जाओ और 3 दिन पड़े रहो जकूज़ी के अंदर, जो करना है करते रहो, राइट। इंक्लूडिंग सही बात है। अभी अगेन जिस अपार्टमेंट में, वहाँ पे वो स्टीम बाथ भी है। अपार्टमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टीम बाथ भी है, सोना भी है आपके अपार्टमेंट के अंदर ही। आपका अपार्टमेंट का वॉशरूम इनका जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसी के अंदर आपको जकूज़ी, सोना, स्पा सब मिला है। स्पा मैंने फिर भी जो है वो, सोना जो है मैंने फिर भी लिया होगा भाई, उसको एंजॉय किया होगा मैंने बीच में, जब थोड़ा शुरू में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, जनवरी का मंथ था, ठंडे ठंडे महीने थे, तो एंजॉय किया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट 3 महीने में एक बार भी नहीं। तो पॉइंट यही है कि अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय करनी है तो मैंने रेंट पे ले रखा है, और इससे भी ऊपर की फैसिलिटीज़ जानी है, आपको 5 स्टार लाइफ जीनी है, आप 2-3 दिन के लिए यार 5 स्टार में चले जाओ ना, वहाँ पे किराया दो आराम से, होटल का एंजॉय करो, वापस आ जाओ घर पे, दैट्स इट। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। इस पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपोज कर सकते हैं, एंड आई एग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। हाँ जी सर, वही वाली बात है ना, टू ईच हिज ओन। हर किसी का अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, हर किसी का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। एग्जैक्टली। जैसे आप बता रहे थे कि आपका दोस्त है, उस वो भी रियल एस्टेट से बहुत उठा है, मेरा भी सेम, मतलब वही दोस्त रियल एस्टेट में अंधा पैसा डाला और काफी अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं। और इधर पर्टिकुलर जैसे फरीदाबाद के एरिया में जैसे बोलते हैं कि जो नया एरिया बनता है उसमें आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दो, तो लेटर ऑन आपको जब वो एरिया डेवलप हो जाता है तब बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। बट लाइक वो तो बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांस है, ये डेली बेसिस पर नहीं होने वाला ऐसा है। सो आई थिंक राइट टाइमिंग बहुत मैं ज्यादा आपको ना इंपॉर्टेंट एक है। चीज़ और भी बताता हूँ, मैं आपको एक जनरल बात और बताता हूँ। रियल एस्टेट कितने साल में प्रॉपर्टी डबल हो जाती है? अगर हम आज की डेट में देखें, मेरे ख्याल से 8-10 साल तो लगते होंगे प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाने में, और वो भी मैं बहुत अच्छी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ आज की डेट में। एक समय था जब शायद मेरे फादर साहब या आपके फादर साहब जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होंगी, तो वो बहुत जल्दी डबल हुई होंगी, राइट। लेकिन आज की डेट में अगर मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ, आप 1 करोड़ का अपार्टमेंट ले लो, 10 साल में वो 2 करोड़ का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अगर वो हो जाए तो। मैं अपने अपार्टमेंट की जो बात कर रहा हूँ, जो मेरे फादर साहब ने लिया था, वो कहाँ हो गया, वो 95-96 लाख का लिया होगा, वो 90 लाख का भी नहीं बिकता आज की डेट में, राइट। सो पॉइंट ये है कि अब यही हिसाब किताब अगर मैं वो रूल ऑफ 72 से देखता हूँ, और मुझे स्टॉक मार्केट में अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो हर 6 साल में मेरा पैसा डबल हो रहा है। यानी अगर मैं 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ, और मैं अगर रिटर्न निकाल लेता हूँ, तो 6 साल बाद वो 2 करोड़ हो गया, और 12 साल बाद वो 4 करोड़ हो गया, जस्ट थिंक ओवर इट। और 18 साल बाद राइट, वो 8 करोड़ हो जाएगा। अब आउट हो आप मुझे जाएगा। बताओ कि फ्रॉम हेयर, यहाँ से रियल एस्टेट में आप कैसे पैसा जो है 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मैंने कितने टाइम्स कर दिया? अगर मैंने उसे 8 करोड़ कर दिया, 8 गुना कर दिया मैंने उसे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 18 साल में, राइट। तो वो रियल एस्टेट में मुझे राइट थोड़ा, राइट राइट। आज की डेट में मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और हो, फिर उसके लिए आप ना जैसे कह रहे हो ना कि जहाँ एरिया जो अभी डेवलप होना शुरू हो रहा हो, फिर आप जाओ बैठो, फिर आप काम छोड़ दो, फिर आप उसमें रमो। आप एरिया ढूंढो, आप जगह ढूंढो, आप शॉर्ट लिस्ट करो, आप 4 चीज़ों को कंपेयर करो। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग बाग बोलते हैं ना, आपको या तो आप प्रॉपर रिसर्च करके स्टॉक खरीदो, राइट। तो वो रिसर्च वाला काम क्या है ना, वो तो हमें एक लैपटॉप दे दो, एक्सेल दे दो, हो जाएगा रिसर्च, इंटरनेट दे दो, राइट। बट रियल एस्टेट में ऐसा नहीं। रियल एस्टेट में आप जाओगे, वहाँ पे आप रिसर्च करोगे, आप कंपैरिजन करोगे, आपका आना जाना लग रहा है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर कल को ग्राहक आ रहा है, अब आप मुझे मेरे पास मान लो 10,000 शेयर हैं HDFC लाइफ के, मुझे बेचने हैं आज, मैं क्या करूँगा? मैं अपनी सिंपल। मोबाइल फ़ोन खोलूँगा, ऐप खोलूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, सेल वाले बटन पे जाऊँगा, 10,000 सेल, ख़त्म बात, राइट। लेकिन यही मुझे अपना मकान बेचना है। ये साथ में अपार्टमेंट है मेरा जो मैंने खरीद रखा है। आज पहले मैं प्रॉपर्टी डीलर को बोलूँगा, भैया भैया बिकवा दो। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर 3-4 महीने में तो एक ग्राहक ढूंढ के लाएगा। फिर उस ग्राहक से नेगोशिएशन होगी, इतना नहीं जी, इतना, इतना नहीं जी, इतना। इस सारे प्रोसेस में मैं मतलब एक और लॉजिक बताता हूँ, इस सारे प्रोसेस में मैंने मान लो अपने 15 घंटे भी खोए, जिसमें मैं ऑफिस भी, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा जहाँ रजिस्ट्री वगैरह होगी, ठीक है, नेगोशिएशंस में भी जाऊँगा, प्रॉपर्टी डीलर से बात करूँगा, चलो 10 घंटे खोए मैंने, 10 घंटे खोए मोटे मोटे। नाउ लेट अस अज्यूम मेरे 1 घंटे की कॉस्ट जो है वो ₹1,00,000, राइट। अपनी अपनी कॉस्ट हर किसी को पता होती है, मैं अपनी ₹1,00,000 के आसपास अज्यूम कर, ₹10,00,000 का मेरे वैसे नुकसान हो गया, 1% मुझसे ब्रोकर ले जाएगा,
राइट। उसके बाद इतनी सरदर्दी पाली मैंने, और मैं बता रहा हूँ ना इसमें कितना रिस्क है। फिर वो कैश की ट्रांजैक्शन भी करने को बोलती सामने वाली पार्टी, कैश हमें मुझे कैश समझ में नहीं आता, राइट। तो उन चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मुझे मैं एक्चुअली में ना, मतलब मेरी रिस्क एपेटाइट जो ऐसी है भाई, मैं कम रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं कम रिटर्न में खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बिना बिना रियल इस्टेट के भी। और रही बात कि अपने सर पे अपनी छत होनी चाहिए, तो एक अपार्टमेंट है अपने पास, जब भी भाई कभी ऐसे भगवान ना करे कोई बुरे दिन आए तो उसमें जाकर रह लेंगे, क्योंकि किराएदार रह रहा है उसके अंदर। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। राइट, मतलब रेजिडेंशियल के लिए अपनी एक मेंटेन करके रख सकते हो, बट बिल्कुल करके ऑन रख गोइंग सकते हो। इन्वेस्टमेंट या फिर वो हाँ, फिर फुल टाइम जॉब है अगर आपको वो फुल करनी टाइम है तो जॉब है। फिर। वो आप रियल एस्टेट में पैसा कमाना चाहते हो, वो पहले हो जाता था कि अच्छा फलानी जगह पे प्लॉट लेके डाल दिया जी, अब फलानी जगह पे प्लॉट लेके डाल दिया, वो कब डूब जाएगा, कौन खा जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको नहीं पता। कितने तरह के उस पर जो है वो, एक्चुअली क्या है ना, ये सब बातें ना हमारी, मतलब ये सब हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं। आज आप मेरे पापा से पूछोगे रियल एस्टेट हो गए, हाँ हाँ, वो आज मुझे मोटिवेट करते हैं, इन्वेस्ट करो जी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो जी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो जी। उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे ना, उन्होंने मकान लिया था 40,000 का, वो बिका 40 लाख रुपए का, राइट। उन्होंने मकान लिया था 24,000 रुपये का, या पता नहीं 28,000 रुपये का मकान लिया होगा 1988 में सरिता विहार में कहीं, और बिका होगा भाई लाखों में। तो उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे है ना कि भाई हज़ारों की चीज़ जो है वो लाखों में बिक रही है, मतलब 28,000 लाखों में बिक 20,000 का रहा एक है। मकान लिया और वो 20-25 लाख का बिक गया, तो आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन अब सही मेरे बात है। एक्सपीरियंसेस, जो हमारी जनरेशन के एक्सपीरियंसेस है, वो अलग होने वाले हैं थोड़े से। और आई थिंक जो फुल टाइम दे सकता है, जो पूरी रिसर्च कर सकता है, जो लगा रह सकता है इन सब चीज़ों के अंदर, जिसका रोज़ का उठना बैठना, वो शायद पैसे कमा ले रियल एस्टेट से। मैं तो नहीं कमा पाया, और आगे मुझे लगता नहीं है। और मुझे कोई फ़ोन करके बोलता भी है कि भाई मकान लेने जा रहा हूँ, मैं उसे 25 बार समझाता हूँ, भाई क्यों ले रहा है भाई, किराए पर रह, एंजॉय कर जीवन को। फिर इमोशनल, हिंदुस्तानी इमोशनल भी तो पूरे ना, कि भाई मम्मी बोल रही, पापा बोल रहे, अपनी एक अपार्टमेंट तो मेरे से लिया ही ऐसे गया था कि अपनी एक छत बना लो जी सर के ऊपर। तो हमने कहा चलो जी, छत बना ली सर के ऊपर, और उसके ऊपर 18 छतें और हैं। एनीवेज, हाँ जी। सर, मेरे को ना एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मेरी फ्रेंड ने शेयर किया था। तो यहीं फरीदाबाद में ही रहती थी। तो वो कहती कि पहले ना मतलब लोगों के पास ज़मीनें ऐसे फ्री की पड़ी रहती थी। हम्म, वो मेरे को बताती है एक बार कि हमारे घर में ना खाने की किल्लत थी, मतलब कि हमारे पास ना खाने के पैसे नहीं होते थे। तो हम्म, हम क्या करते थे, हम अपनी ज़मीन बेच के उस दिन का खाना लेके आते थे। मतलब बताओ। इतना पहले बुरा हाल था। मतलब हम्म, ऐसे कह रही कि ऐसे ज़मीनें पड़ी रहती थी ना, कोई होश नहीं था हमें। अब जब उन्होंने बेच दिया, मुझे लगता है कि यार उस टाइम होल्ड करा होता तो आज कितनी वैल्यू बढ़ गई होती। बट उस टाइम आपकी प्रॉब्लम्स और थी, उस टाइम टाइम और था, उस टाइम जो एग्जैक्टली। सर्कमस्टांसेस थे वो बिल्कुल डिफरेंट था। इवन मेरे मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि पहले क्या होता था कि गांव के बीच की ज़मीन की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, और जो आउटर ज़मीन होती हाँ। थी उसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। तो कुछ लोगों को ना जानबूझ के गांव से निकाल के वो बोलते थे बाहर रहो, बाहर को रहो, बाहर वाली जगह पे रहो, और वो बाहर वाली जगह की कीमत इतनी बड़ी क्योंकि वो रोड्स के पास आ गई, राइट। तो ये समय समय राइट। की बात है, किस्मत की बात है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि भाई पैसा कमाने में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। अनडाउटेडली। सर, आप इंडेक्स फंड्स में बहुत बहुत मोटिवेट करते हो कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करते हो कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंडेक्स फंड में लगा दो। आपने खुद हम्म, भी काफी लगा रखा है, इनफैक्ट मैंने भी लगा रखा है हम्म, आपके कहने पे। हम्म, तो सर, ईटीएफ के लेकिन आजकल बहुत, जैसे हमारे चैनल पे भी बहुत हम्म, ऑडियंस ईटीएफ हम्म, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे हम्म। में पूछती है कि क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालिए कि ईटीएफ्स होते क्या हैं और क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए वो। हम्म। पहले पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोई इंडेक्स फंड का नाम लेता है ना, मुझे तो लगता है कोई मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं। तो आई फील वेरी गुड, मुझे बड़ा आनंद सा आना शुरू हो जाता है इंडेक्स फंड, क्योंकि एक्चुअली में मुझे ना, मैं जब मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव नहीं भी था ना, तब भी मेरा थॉट ये था कि यार पूरी मार्केट ही खरीद लेते हैं ना, कुछ ऐसा बताओ जिससे पूरी हम्म। मार्केट ही खरीद ली जाए। क्योंकि मार्केट तो ऊपर बढ़ी रही है, हम जब से पैदा हुए हैं हम तब से ये देख रहे हैं भैया, ठीक है टेम्परेरी डाउनवर्ड्स भी जाती है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें लॉन्ग रन में, मैं बोलता हूँ निफ्टी 1,000 से शुरू होकर पहुंचा है ना, आज 16,000 टच करने वाला है ना। और कितने बीच में गिरावट आई होंगी, कितने उछाल आए होंगे, 16,000 पहुंच जाएगा। सो माय पॉइंट इज़ कि भाई इससे बढ़िया मुझे कुछ, मेरे पहले मुझे पता नहीं था कि इंडेक्स फंड ऐसा होता है, मुझे लिटरली नहीं पता था। फिर तो एक दिन एक चमत्कार हुआ और किसी भाई ने ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में बताया, मैं तो उस दिन पागल हो गया, मुझे नींद नहीं आई, मैं बन गया बिग बैंग थ्योरी का शेल्डन। मैंने पूरे दिन पूरी रात बैठ के भाई रिसर्च कर डाली उसके ऊपर। मैं अपनी वो जैसे स्ट्रिंग थ्योरी को लेके पागल था, मैं इंडेक्स फंड को लेके पागल हो गया। और मैंने पाया कि यार
यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, अवेयरनेस ही नहीं है। और जबकि यूएस में ये चीज़ें कब True. से चल रही हैं और लोग बाग पागल हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफे जिन्हें हम इतनी इज्जत देते हैं, वो जो हैं इंडेक्स फंड के बारे में इतना बोलते हैं। एंड बहुत सारे और लोग हैं जो इंडेक्स फंड साफ बोलते हैं। इवन वॉरेन बफे की शायद लास्ट टू लास्ट मैंने मीटिंग पूरी की पूरी देखी थी, याहू पे स्ट्रीम कर रहे थे वो, जब उनकी बर्कशायर हैथवे की मई के मंथ में होती है उनकी शायद मीटिंग, तो मैंने पूरी देखी। उन्होंने साफ बोला कि आज भी एक एवरेज व्यक्ति जो है इंडेक्स फंड से बहुत पैसे कमा सकता है, उसे कोई ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपने कितने पैसे कमाए, तो शर्मा जी आपको तो पता ही है मैंने कितने पैसे कमाए इंडेक्स फंड से, क्योंकि आप देखते रहते सारे इन्वेस्टमेंट। बहुत पैसे कमाए भाई, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट रही, बहुत बढ़िया जो है मौके रहे। अगेन लक बहुत अच्छा था, जब मार्केट 7800 आई, 7800 आई, हमने तब भी पैसे लगाए इंडेक्स फंड के अंदर। SIP हमने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। अच्छा खासा रिटर्न है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा CAGR जो है, अगर मैं CAGR की बात करूँ, वो अराउंड 30-35% चल रहा है पिछले 3 साल से, शायद उससे भी ज़्यादा चल रहा है। तो भाई क्या बुराई है, मुझे बताओ ना क्या बुराई है इसमें। मैंने बस एक काम किया कि Right. मैंने SIP के साथ साथ मैंने ध्यान रखा कि भाई मार्केट जब बहुत ही नीचे आती थी तो मैं ज़रूर आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं इन्वेस्ट करूँ। नाउ कमिंग टू ETF, तो ETF में भी मैंने इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रखी है। अगेन निफ्टी 20 जिसे आप बोल सकते हैं, राइट। उस तरह के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, या और जो भी इस तरह से स्टॉक, बेसिकली ETF क्या है, ETF इज़ जस्ट लाइक एक म्यूचुअल फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। इट इज़ दैट सिंपल एज दैट। म्यूचुअल फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, आप एक्सचेंज से उसे खरीद बेच सकते हैं। तो मैंने उसमें भी निफ्टी 20 या निफ्टी, अभी मैं UTI नेक्स्ट 50 जो आता है उसका भी मेरे ख्याल से ETF बना हुआ है, उसमें मैंने कुछ इन्वेस्ट करा है। जस्ट स्टार्ट किया मैंने नेक्स्ट 50 के अंदर। मैं जनरली निफ्टी 50 पे ही स्टिक करता हूँ। तो पॉइंट ये है कि आप ETF में ज़रूर इन्वेस्ट करें। कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि ETF में लिक्विडिटी का इशू है, हो सकता है किसी दिन बायर ना मिलें, तो धीरे धीरे ये सारे इश्यूज जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया को हमेशा बोलते हैं इंडिया इज़ लाइक एन एलिफेंट। तो एलिफेंट उठने में टाइम लेता है, और उसके बाद जो है पहला कदम रखने में टाइम लेता है, फिर वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, राइट। तो बिल्कुल अब हम लोग भाई इस चीज़ को लेके जो है जागरूकता आ रही है, इंडेक्स फंड को लेके, ETF को लेके। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो लिक्विडिटी की बहाने बोले जाते हैं कि ETF में लिक्विडिटी कम है, ये सब चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। और ETF के फ़ायदे अगर मैं म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करूँ तो ये है कि ETF में ना आप किसी भी प्राइस पे बाय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड पे आपको क्लोजिंग NAV हमेशा मिलेगी। फॉर एग्जांपल आई थिंक कट ऑफ टाइम जो 2 बजे का चल रहा है या शायद 1 बजे का चल रहा है, तो आपने वो जो भी कट ऑफ टाइम चल रहा है आपने वहाँ तक परचेज़ कर लिया, तो आपको डे एंड की NAV मिलती है। ETF में क्या होता है कि भाई आपने जिस समय परचेज़ किया आपको उसी समय का जो है वो जो भी प्राइस था उस पर मिल जाता है। सो येस, आई यूज़ ETF ऑल्सो, आई यूज़ इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। तो दोनों ही चीज़ें मैं यूज़ करता रहता हूँ। और इन चीज़ों में ना मतलब मुझे लगता है कि हम सोच के कभी कभी ना समय वेस्ट कर देते हैं, ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। सिस्टमेटिकली चलना है। Analysis paralysis. यस एनालिसिस पैरालिसिस, ओवर एनालिसिस कर डालते हैं हम लोग। आपको सिस्टमेटिक चलना है, SIP करनी है, तो भाई आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ नहीं है। किसी भी अच्छी AMC की वेबसाइट पर जाएं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, जय माता दी। आपको लगता है नहीं सिस्टमेटिक तो चल ही रहा है, मुझे एडिशनल, जैसे मुझे लगता था कि यार मैं ना ये भी ध्यान रखूँ मार्केट जब बहुत नीचे चली गई है अपने अपर लेवल से, तो मैं जाके जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करूँ। तो उस केस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि AMC पे जाओ, वेबसाइट कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, आज की NAV मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं ETF जाके परचेज कर लेता था। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अच्छा. इसमें और एनालिसिस करोगे ना कि भाई ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी लीगैलिटी क्या है, तो दिक्कतें आएंगी, आप लोग फंसते चले जाओगे कि ये अच्छा है ये बुरा है। आप ये एक सिंपल सी बात समझ लो कि आप इंडेक्स फंड में AMC के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक म्यूचुअल फंड है, आप जाके उसे बाय कर रहे हो एक्सचेंज पे, वो आपका एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, दैट्स इट। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो फंड एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है। इस बहुत सिंपल रखते हैं इसको, राइट। तो मतलब ये है कि अपनी SIP तो चलाओ भाई, अपना जो मंथली आपका एक अमाउंट आपने फिक्स कर रखा है वो तो चलाओ ही चलाओ। किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, कभी डाउन अगर आया है, तो आप ETF में जाके भाई वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हो। ऑन द स्पॉट आप बाय कर सकते हो, आपको वो जो रेट चल रहा होगा वो मिल जाएगा। और मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें बहुत। अब जैसे मैं आज की डेट में निफ्टी 50 के ETF खरीद रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने तब खरीदे थे जब लास्ट ईयर मार्च था, बिल्कुल खरीदे थे साहब। मार्च जब चला, अप्रैल जब चला, तो मैंने बिल्कुल खरीदे, वो स्टैगर्ड फॉर्म में खरीदे, वो भी अपनी SIP चल रही थी। और यहाँ पे भाई मुझे जब भी ऐसा लगता था कि नहीं, मैं मार्केट ने एक नया रॉक बॉटम बना लिया है, चलो भाई, उसके बाद ही मार्केट गिरी है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने 9000 पे भी ETF लिया, तो उसके बाद मार्केट 7800 तक गई, तो मैंने रिग्रेट नहीं किया। मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये चीज़ है कि भाई इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड का सिंपल सा मतलब है आपने देश की इकॉनमी में जो है वो इन्वेस्ट करा है, और देश की इकॉनमी जो है
वो आज नहीं तो कल ऊपर जानी ही है। बिजनेसमैन जो हमारे बैठे हैं ना, वो पागल नहीं है। बिजनेसमैन काम करेंगे, कंपनीज आगे बढ़ेंगी, देश की इकॉनमी आगे बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। ये बेसिक अजम्पशन है, ये बेसिक अजम्पशन है इंडेक्स फंड के आगे बढ़ने की, कि आपकी स्टॉक मार्केट और आपका जीडीपी एक डायरेक्शन में चलता है, और जीडीपी लंबे समय में जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता है, और स्टॉक मार्केट में भी जो अर्निंग्स है कंपनी की, वो लंबे समय में ऊपर की तरफ जानी ही है। नहीं तो आप देखो ना, मतलब ठीक है, कोविड आया, कोरोना आया, क्या ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी? जिस दिन ये ऐसा कुछ आ जाएगा जिससे ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, उस दिन स्टॉक मार्केट्स भी खत्म हो जाएगी, और उस दिन जब स्टॉक मार्केट भी खत्म हो जाएगी तो आप और मैं पैसों का करेंगे क्या? तो जब तक आपके मन में ये विश्वास है कि ह्यूमन रेस आगे बढ़ेगी, ह्यूमन रेस चीज़ों को कंज्यूम करेगी, देश में कंजम्पशन बढ़ती रहेगी, देश में एक्टिविटीज़ जो है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहेंगी और आगे बढ़ेंगी, जब तक आपका ये विश्वास है, तब तक इंडेक्स फंड आपके साथ है और आपको इंडेक्स फंड के साथ रहना चाहिए। एक वो सीरीज आई थी ना, स्कैम 1992, तो इंडिया का भाव बढ़ने वाला है, इंडिया पे लगा दो, वो समझ नहीं पाए लोग। वो इंडेक्स फंड की बात ही कर रहा था हर्षद मेहता कि भैया इंडिया का भाव बढ़ने करेक्ट। वाला है, मतलब इंडिया की इकॉनमी सही बढ़ने बात है। वाली है। तो आप ये देखो, आपको क्या लगता है, क्या हम लोग चीज़ें कंज्यूम करना बंद कर देंगे? इतने हम टफ टाइम से गुजरे पिछले 1 डेढ़ साल में, क्या हमने चीज़ें कंज्यूम करनी बंद कर दी? आंसर इज़ नो, बल्कि और बढ़ा दी होंगी। कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, राइट, उसके बाद इंटरनेट की कंजम्पशन, अब ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ा दी होंगी हमने। तो वो कंजम्पशन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? वो कंजम्पशन कंपनीज के रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट कर रही है। कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। और एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आपके मन में कभी भी ये सवाल आए ना कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे क्यों होती है लॉन्ग रन में, तो मैं आपको बता दूं, वो ऊपर नीचे इसलिए होती है क्योंकि जिन कंपनीज से हम लोग इंडेक्स बनाते हैं, उन कंपनीज की अर्निंग पे डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें, आपको लगता है कि आप मुझसे पूछो सर आज भारतीय एयरटेल का प्राइस नीचे क्यों गिरा, मुझे नहीं पता। आज ऊपर क्यों बढ़ा, मुझे नहीं पता। लॉन्ग रन में ऊपर बढ़ेगा नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, भारतीय एयरटेल की अगर इनकम बढ़ेगी, अगर अर्निंग बढ़ेगी, तो वो ऊपर बढ़ेगा, नहीं तो वो नहीं बढ़ेगा। दैट्स इट। लॉन्ग रन में प्राइस, स्टॉक का प्राइस और स्टॉक जो हमारी कंपनी होती है उसकी अर्निंग एक डायरेक्शन में जाती है, ये पक्की बात है, राइट। शॉर्ट रन का भाई हमें तो पता नहीं, कोई वो बाबा बाबा हो कुछ भाई, वो देख के बता सकते हो तो फिर वो देख के बता दें। सर बाबा तो नहीं पता। तो सर अब डिविडेंड्स को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दे लिव ऑफ द डिविडेंड्स, कि वो अपने मंथली पूरे एक्सपेंसेस डिविडेंड्स पे निकालते हैं। क्या आपकी नजर में, डू यू पर्सनली नो समवन कि भाई जो ऐसा कर रहा है कि उसका पूरा खर्चा ही मतलब सिर्फ डिविडेंड इनकम से निकल जाता है? नहीं, पर्सनली मैं किसी को नहीं जानता ऐसे, मतलब ऐसे कोई घर के आसपास हो या कोई पर्सनली जिसने मुझे बताया हो, ऐसे मैं किसी को नहीं जानता। और मुझे लगता है कि ये डिविडेंड से अर्निंग ना आज की डेट में थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। एक तो ना, आई होप हमारे ऑडियंस जो है डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के बारे में जो है वो जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो कभी हमें सुनाई देते ना कि 2000% डिविडेंड, 3000% डिविडेंड, वो 2000-3000% होता नहीं है। आपको क्या है कि आपको फेस वैल्यू के हिसाब से जो है डिविडेंड बताया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है, मार्केट वैल्यू उसकी 10,000 रुपये चल रही है, मार्केट वैल्यू उसकी 30,000 रुपये चल रही है, और आपको डिविडेंड दिया 10 रुपये। तो वो आपको ना पता कैसे बताएंगे, 1 रुपये पे 10 रुपये का डिविडेंड दिया, अरे भाई नहीं, 30,000 रुपये पे आपको 1 रुपये का डिविडेंड मिला है, राइट। सो आज की डेट में डिविडेंड पे जी पाना इंडिया में स्पेसिफिकली थोड़ा सा मुश्किल है। उसके पीछे मैं लॉजिक भी बताता हूँ। इंडिया में जो कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, तो डिविडेंड है क्या? बेसिकली जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो आपको डिविडेंड मिलता है, राइट। एक बात। दूसरी बात, कंपनी की मर्जी है वो डिविडेंड दे या नहीं। कंपनी के पास अगर आगे की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी उसे आगे इन्वेस्ट कर सकती है, ओके। अब आपके पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, भाई वो कंपनी डिविडेंड हो सकता है दे भी ना, एक बात। दूसरी बात, वो कंपनी आगे इन्वेस्ट करती जाए। अब कमिंग टू द इंडियन सिनेरियो, यूएस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत हेल्दी डिविडेंड पे करती है, और डिविडेंड इन्वेस्टिंग लोग बाग करते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट इसलिए करें डिविडेंड आए। इंडिया में ये मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी आप देख रहे हो ना कि ग्रोथ फेज चल रहा है। तो अगर एक कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारे प्रॉफिट्स आते हैं, तो वो कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी के जो चलाने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम उस पैसे को दोबारा लगाएं ताकि हम और बड़ा बन पाएँ। तो वहाँ पे डिविडेंड इन्वेस्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं इंडिया में, तो गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स होते हैं, मैंने करके देखे, मैंने हर चीज़ पे जो है पूरा रिसर्च किया, मैंने खुद भी देखा है। देयर इज़ अ शेयर, और ये किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है भाई, सिर्फ एक एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहा हूँ। RECL बड़ा ज़बरदस्त डिविडेंड देता है वो, बट एट द सेम टाइम उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होती है। आप बैठ कैसे देखते रहोगे? एक बात और कि डिविडेंड जो है पहले टैक्सेबल नहीं होता था, तो लोग बाग उसको एंजॉय करते थे। फिर डिविडेंड 10 लाख तक टैक्सेबल नहीं था, लोगों ने उसको भी एंजॉय किया। लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि भाई बहुत एंजॉयमेंट हो गई, और अब डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होता है, राइट। इवन उस पर TDS वगैरह भी है। तो अब लोगों ने डिविडेंड इन्वेस्टिंग, एटलीस्ट इंडिया में डिविडेंड इन्वेस्टिंग ने एक बैक सीट ले ली है। हो सकता है कुछ सीनियर सिटीजन्स वगैरह हों जिनके पास बहुत पुराने बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हों, उनके भी पापा ने लिया, समझ रहे, सीनियर सिटीजन है, उनके भी फादर ने ले रखे हैं स्टॉक्स, और वहाँ से राइट। उनको एक अच्छा डिविडेंड मिल रहा हो।
नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं बहुत बड़े हों। आप ये लगा लो कि अगर आपका 1% डिविडेंड आपको एक्चुअली मिल रहा है, 1% की आपकी जो है डिविडेंड यील्ड आपकी आ रही है, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो हम उसके लिए काम ही नहीं कर रहे। आज की डेट में इंडिया में कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जनरली इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने अपने आसपास ऐसा कोई नहीं देखा है, ऑल्दो मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं आज की डेट में, बट आई एम नॉट काउंटिंग ऑन देम कि ये अगले साल भी दे। मैं तो चाहता हूँ भाई वो अपना बिजनेस बढ़ाएं। एज अ शेयर होल्डर आई वांट कि भाई मुझे डिविडेंड मत दो, क्यों वो टैक्सेबल हो रहा है बेफालतू, मेरी कंपाउंडिंग टूट रही है। आप उस पैसे को लगाओ वापस बिजनेस में, बिजनेस बढ़ाओ, आगे ले जाओ, और मुझे तो कैपिटल एप्रिसिएशन दो। मैं आज से जब 20 साल बाद उस स्टॉक को बेचूँ तो वो 20x 30x 40x पे बिके, तो मैं उसको इन्जॉय करूँगा। राइट राइट राइट। तो मतलब यही है कि डिविडेंड तो भाई टोटली एट दी कंपनीज डिस्क्रिशन। रिक्वेस्ट है, मिले तो मिले, हाँ कंपनीज डिस्क्रिशन है, मिले तो मिले, ना मिले तो वही है। इन दैट केस आई मीन वन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड इनकम इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर मंथली लाइफस्टाइल। सर आपकी डॉटर मिष्टी बहुत स्मार्ट है, तो मतलब किस तरीके से आप उसका मनी को लेकर उसको सिखाते हो, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली रीडिंग पर्सनल फाइनेंस बुक्स विद हर, जो कि आई थिंक आपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में भी बताया है और काफ़ी इधर उधर ओकेजन्स पे भी बताया कि आप उसके साथ बैठकर वो बुक्स पढ़ते हो। सो व्हाट अदर थिंग्स डू यू डू टू टेल हर द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, या फिर किस तरीके से आप उसे मनी को लेकर कंफर्टेबल? सबसे पहले तो पैसों के बारे में जो है हम बातचीत करते हैं उसके सामने, मतलब कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ, और इन्वेस्टिंग में उसके साथ डिस्कस करता हूँ। इंश्योरेंस मैंने उसको कुछ बुक्स लेके दी हैं जो उसी के लेवल की है, जिसमें इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, डेट फ्री क्यों रखना चाहिए अपने आप को, इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई। बहुत पतली पतली सी किताबें हैं, बिल्कुल उसमें बच्चों की स्टोरी के थ्रू बताते हैं। देन उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी बताई कि इमरजेंसी फ़ंड क्यों होना चाहिए, तो मिष्टी को ये सारे टर्म्स पता है, इमरजेंसी फ़ंड क्या है, डेट क्यों नहीं होना चाहिए, देन साथ में इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होती है, उसे अपने दिमाग से आइडिया है। एक दिन मैं उससे ऐसे पूछ लिया इन्फ्लेशन याद है, तो कहती है हाँ ओरियो बिस्किट का प्राइस बढ़ता जा रहा है इसलिए मेरे को ओरियो कम मिलते हैं। तो उसको अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से शी इज़ हैविंग सम लिटिल नॉलेज कि भाई ठीक है इतनी चीज़ें उसे पता है। मैं कोशिश करता हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको अवेयर रखूँ। इवन मैंने ये भी प्लान किया था कि ये तो कोरोना काल आ गया, हमने इवन सेकंड वेव से पहले प्लान किया था कि हमारे यहाँ पे ना एक बड़ा फेमस स्टोर है, कैसे ग्रॉसरी स्टोर है, तो हम उसके बाहर जाके जो एक मिष्टी का एक लेमनेड जो है वो स्टॉल लगाएंगे कि मिष्टी वहाँ पे लेमनेड, या फिर वो मिष्टी खुद भी बोली थी मैं सैंडविचेस बना के जो है वो सेल करूँगी। तो आई जस्ट वांट हर टू टेक एक्सपोजर, कि वो जाए कहीं पे और देखे कि कैसे जो है स्किल्स को मोनेटाइज किया जाता है, कैसे जो है वो पैसे का इन्फ्लो आता है, फिर इन्फ्लो आने के बाद आप उसको क्या करते हो, उसे पूरी साइकिल समझ आए। एंड अभी हम एक बुक पढ़ रहे थे मैं और मिष्टी रिसेंटली, उसमें एक बड़ी कमाल की बात लिखी थी, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में बात हो रही थी, तो मैंने उसको वो भी समझाया। तो उसने टीचर को, स्कूल टीचर को उसने बोल दिया मैम यू टीच एंड यू अर्न एक्टिव इनकम, व्हेन यू इन्वेस्टेड यू विल गेट पैसिव इनकम। तो वो एक बड़ी अच्छी बुक थी, उसमें ना लिखा था कि वेयर डू यू गो व्हेन यू नीड मनी, और आंसर था यू गो टू वर्क। तो मिष्टी को मैंने समझाया वेयर डू यू गो व्हेन यू नीड मनी, तो वो कहती पापा मैं तो आपके पास आती हूँ व्हेन आई नीड मनी। तो मैंने कहा यही दिक्कत है कि यू हैव टू गो टू वर्क, हम कब तक देंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बेसिक बातें करें। अब ये मत एक्सपेक्ट करें आप एक 8 साल के बच्चे से कि भैया वो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेगा, राइट, वो म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट कर लेगा। उसे बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने के लिए, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हो, आप बिजनेस होल्डर बन रहे हो, बिजनेस मैन की तरह आपको सोचना चाहिए। एक इतना भी आइडिया कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा करेगी। प्रॉफिट क्या होता है मैंने उसको ये समझाने की कोशिश करी कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो जो बातें मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, वो उसके सामने करता हूँ। कुछ वो मेरी वीडियोज़ ही देख लेती है छोटी मोटी, तो कोई बात पकड़ लेगी, फिर उस बात पे डिस्कशन कर लेंगे। इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। सर आई थिंक यहाँ पे ना बिहेवियर ये जो है पूरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना, और इस बिहेवियर को रेगुलेट भी करना। बिकॉज क्या है कि हमने तो ये देखा है कि हमारे मम्मी पापा ने वो देखे हैं, मतलब स्कैम के ज़माने से आए हैं वोट के, तो उनका तो बड़ा ही वो एप्रीहेंशन होता है कि नहीं नहीं स्टॉक मार्केट तो जुआ है जी, सट्टा है, यहाँ तो नहीं करना, हाँ सट्टा है, इन्वेस्ट नहीं करना। एंड आई थिंक आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हो कि आप अभी से उसे कंफर्टेबल कर रहे हो विद द आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। एंड आई बिलीव सर बहुत सारे पेरेंट्स भी ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, और तो आप बस कुछ आइडिया शेयर करिए कि किस तरीके से उन्हें अपने बच्चों को इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना चाहिए। थोड़ा सा आप बस गाइड करिए ताकि वो भी अभी से अपने बच्चों को कंफर्टेबल कर सकें विद मनी, विद पर्सनल फाइनेंस।
आई थिंक सबसे पहले तो इन्वॉल्व देम। आपके घर में जो बजटिंग हो रही है या जो पैसों को लेके बातचीत हो रही है, आपने कोई लोन ले रखा है, लोन नहीं ले रखा है, आप उनको इन्वॉल्व करें अपने साथ। बेसिक बातें उनसे करते रहिए और उनको ये 2-3 प्रिंसिपल्स, नंबर 1 कि भाई एक्टिव इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, एंड यू नीड टू लर्न सर्टेन स्किल्स इन एजुकेशन ताकि आप एक्टिव इनकम कर पाएँ अपनी लाइफ। देखो काम की ना दो अप्रोच हैं। काम आपको पैसा भी कमा के दे दो, काम आपको खुश भी रखता है। आप 5-10 दिन काम मत करो, देखो अपनी हालत क्या हो जाएगी, राइट। वो काम जो आपको बहुत पसंद है ऑब्वियसली, राइट। सो इफ़ यू हेट अ थिंग तो आप उसमें काम नहीं कर सकते ज़्यादा समय। लेकिन अगर आपको किसी काम से प्यार है, 5-10 दिन मत करो, आप पागल हो जाओगे, पक्की बात है। आपको अजीब सा लगने लग जाएगा। तो आपको इनको ये बातें जो है सिखानी है कि भी एक्टिव इनकम कहाँ से आती है, यू नीड टू वर्क, और कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है रीडिंग और राइटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, राइट करें, स्टोरी टेलिंग में डालें। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जो है उनको ये समझाने की कोशिश करें कि भाई पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। एक्सपोजर दें उनको, डरे ना उनको। अगर वो कोई किसी तरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई चीज़ बना के सेल करना चाहते हैं, तो उनकी मदद करें, राइट। कोई ऐसे तरह की हम्म एक्टिविटी हो रही है तो उनकी हेल्प कर रहे हो। बेसिक चीज़ें, इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर बताएं, इमरजेंसी फ़ंड के हम्म बारे में ज़रूर बताएं, राइट। किस किस तरह की जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टिंग की, बेसिक आइडिया ज़रूर दें कि स्टॉक मार्केट क्या है क्या नहीं है। पर्सनल फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, इन्वेस्टिंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा पर्सनल फाइनेंस के पे ज़्यादा ध्यान दें, बजटिंग पे ध्यान दें। यही हो सकता है इस छोटी उम्र में, मैं बोल रहा हूँ जब बच्चा 10 साल से छोटा है तो इससे ज़्यादा अभी वो क्या समझेगा। उसको बेसिक आइडिया बताएं, अकाउंट्स उसको शुरू से बताएं, जैसे कि उसको प्रॉफिट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है। अब यहाँ पे कई लोग ना बड़ा इसको हम्म नेगेटिव भी लेंगे कि बच्चे के माइंड में क्या क्या बातें डाल रहे हो। अरे यार, तुम खुद भी तो कमाना ही चाह रहे हो ना, खुद भी तो लोग बाग कमाना ही चाह रहे हैं ना, उसको पता होना चाहिए प्रॉफिट है क्या। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रू एवरीथिंग रिवॉल्व्स, स्टॉक मार्केट में हर चीज़ प्रॉफिट के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है। जिस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जितने ज़्यादा हैं और प्रॉफिट जितनी ज़्यादा बढ़ रहा है, अमाउंट में जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, आई थिंक उस कंपनी का स्टॉक प्राइस उतना ही ऊपर जा रहा है, राइट। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, फ्रॉड ना हो, मैनेजमेंट सही हो, मोड्स हो, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया एक कंपनी के आगे बढ़ने का होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसको पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है, ये पता होना चाहिए। आई थिंक ये बेसिक अगर हम आइडिया देते चलें तो कोई उनको जो है बीट नहीं कर सकता। जब वो कोई नई चीज़ मांगे तो उनको बताओ कि भाई ये नई चीज़ जब आप ले रहे हो उसकी क्या, क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, पैसा फिजूल में क्यों खर्च करना चाहिए, क्यों खर्च नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम आप ये देखें कि अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, उनको कोई चीज़ सीखने को मिल रही है या उनका आगे करियर बनता है किसी चीज़ से, तो आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर उनको दिलवाएं, ज़रूर उनको आगे बढ़ने दें। सर एक यहाँ पे और चीज़ मैं बात करना चाहूँगी जिसमें बच्चों को मतलब काफ़ी सारे घरों में ना बड़े लोग जो होते हैं उन्हें लगता है कि अरे इसके ऊपर तो मतलब इसके सीखने के ऊपर ज़्यादा पैसे तो तब लगाओ जब इसको थोड़ी अक्कल आ जाए, अभी तो इसको खेलने दो, अभी तो इसको थोड़े मज़े करने दो। एंड इन फैक्ट टू सम एक्सटेंट सर ये मेरे घर में भी होता है, जैसे मेरे घर में भी हम्म, 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं हम्म, उनके लिए कभी भी कुछ नई चीज़ लेकर आती हूँ, दे आर लाइक कि अभी से क्यों इतना पैसा तुम डाल रही हो इन सब फालतू की चीज़ों में, चाहे वो फिर स्पीकिंग की क्लासेस हैं या फिर कुछ गेम्स वगैरह हैं। तो सर ये वाला चेंज जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे देखो, ना हमें अपने बड़ों से ना मतलब लड़ जाना चाहिए, उनसे ना वो नहीं मुझे करना लगता चाहिए है कि मुझे लगता है जो नहीं। मेरी छोटी डॉटर है खुशी, अभी ऑब्वियसली मैं उसको कुछ नहीं सिखाऊंगा ना, 2 साल की अभी, तो उसको मैं कहता करेक्ट, हूँ पर एंजॉय जब वो करना, सी जितना एंजॉय करना है। जिस हम्म दिन वो बोलना सीखेगी, पढ़ना सीखेगी, रीड करेगी, तो आई 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 विल लव इट कि भाई वो पहले दिन से कुछ मनी के बारे में जाने। हमने मनी को ऐसा टैबू बना दिया ना, मनी को हमने नेगेटिव कर दिया। जिसके पास पैसा है वो बहुत हम्म गंदा है, वो गलत है, राइट। पैसा कमाना ही गलत है, इतने पैसे क्यों कमा रहे हो, झोला लेके चलो ज़िंदगी में, क्यों भाई क्यों। तो मैं तो चाहूँगा मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे क्या, जो लोग भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो पैसे को समझें, पैसे को जानें, पैसे की इंपॉर्टेंस को समझें। आपको पता है एक चीज़ मैं भी पढ़ रहा था कहीं पे, और कितनी सही बात है। लोग वो बोलते हैं पैसा जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बातें तभी बोली जाती है जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, तभी आप ये बातें बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट है, हम्म राइट। सो पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे से आप बहुत चीज़ें जो है बाय कर सकते हो, बहुत चीज़ें जो है बाय कर सकते हो। इवन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पैसे से समय भी बाय किया जा सकता है। बिलीव मी, पैसे से समय भी बाय किया जा सकता है। अगर आप आज इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आप अपने आने वाले समय को बाय कर रहे हैं एक्चुअली में। अभी क्या है कि आप अदरवाइज आप क्या करते हैं, अदरवाइज आप पूरी ज़िंदगी अपने समय को ट्रेड करते रहेंगे फॉर मनी। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, करेक्ट आपका आर्ली रेट फिक्स होता है यार, मंथली मंथली कुछ ही बोलते हैं, आपका आर्ली रेट फिक्स होता है कि इतना पैसा, इतने पैसे के लायक है ये। तो आप अपने आर्ली रेट का मतलब ये है ना कि यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। बट अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करते हैं, आप जल्दी जो है पैसा जोड़ते हैं, जल्दी शुरुआत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते हैं। जल्दी शुरुआत करने का मतलब है जिस दिन आपकी पहली इंटरेक्शन हो पैसे के साथ, चाहे वो गिफ्ट में मिले चाहे कैसे मिले, स्टार्ट इन्वेस्टिंग
एटलीस्ट स्टार्ट सेविंग। इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है तो पैसा बचा के कहीं बैंक अकाउंट में डाल दो, क्योंकि तब आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगना, तो घबराने की कोई बात भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग सीखे, उसको स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और जितना ज़्यादा लोग बाग क्या करते हैं, 5% ऑफ इनकम सेव कर, 10% ऑफ इनकम सेव कर, इससे क्या लड्डू होगा? आप इनिशियल ईयर्स में अपने मैक्सिमम जितना सेव कर सकते हो उतना सेव करो, उतना इन्वेस्ट करो। अगर आप ये 2 काम अभी कर रहे हैं, आप अपनी आगे की ज़िंदगी का समय बाय कर रहे हैं। आप अपनी 60-70 साल की उम्र में आप जॉब करने जब लायक नहीं होंगे, आप अगर तब भी आपको जॉब करनी पड़ रही है तो हालत ख़राब है ना आपकी। लेकिन आज आप सेव करके 40 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हो। रिटायर मतलब क्या, कि अब आप वो काम छोड़ रहे हो जो आपको पसंद नहीं, आप सिर्फ वो काम करोगे जो आपको पसंद है। आपकी पैसिव इनकम बहुत ज़बरदस्त है, एक्टिव इनकम आप थोड़ी भी करते रहोगे तो वो ज़िंदगी आपकी बढ़िया चलती रहेगी। यू हैव परचेज्ड दैट टाइम के भैया, अब पहले आप 10 घंटे काम करते थे, लेकिन एट द एज ऑफ 40 आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस है कि आप 2 घंटे भी दिन में काम करते हो तो चल रहा है, यानी कि आपने अपने हर दिन के 8 घंटे परचेज कर लिए पैसे से। So money is very powerful and we should all learn the importance of money, and we should all learn this basic lesson. Start as early as possible, invest as much as possible, and you will see कि कितना बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है। लाखों करोड़ रुपए का डिफरेंस पैदा हो जाएगा 5 से 10 साल के अंतराल में। यानी अगर मैंने 20 साल में इन्वेस्टिंग शुरू करी, आपने 30 साल में इन्वेस्टिंग शुरू करी, अमाउंट सेम रख लो, रेट ऑफ रिटर्न सेम रख लो, लाखों का डिफरेंस पैदा हो जाएगा, करोड़ों का डिफरेंस पैदा हो जाएगा, आई एम श्योर। डेफिनेटली सर। मतलब यही आई थिंक मुझे नवाल रविकांत का एक कोट याद आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने वही बोला था कि मनी, द बिगेस्ट थिंग दैट मनी बाइज यू इज फ्रीडम। कि मतलब एक्चुअली में जो आपने बिल्कुल सही बोला, और बहुत ही अमेजिंग पर्सपेक्टिव लगा मुझे ये कि हाँ यार, एक्चुअली में आगे जाके काम नहीं करना। कोई इंसान काम तभी छोड़ सकता है ना जब उसके पास इतना पैसा है कि हाँ भाई, अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं ना तो मेरे को खाने के ला लेना पड़े, मैं मतलब अपना खाना पीना निकाल सकूं, अपने महीने के खर्चे निकाल सकूं। तो ये बहुत काम बड़ी करना बात है ये, छोड़ना ना बहुत ही। शर्मा जी, हमें मैं करेक्ट कर दूँ, काम करना छोड़ना नहीं है, हमें वो काम करना है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हमें वो सारे हाँ काम छोड़ मतलब देने हैं जो हमें ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं बता रहा जो हूँ हम शायद मैं हमें वैल्यू एडिशन नहीं लगती। यस मैं आज आपको ये बोल सकता हूँ कि काम करना छोड़ना एक ड्रीम है, और वो बेकार ड्रीम है। क्योंकि जिस दिन आप काम करना छोड़ोगे आप बेकार हो जाओगे, बिलीव मी, आप बेकार हो जाओगे, आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे। आपको या तो कोई साथ में पैशन पाल लो अपने, कि भाई हो सकता है किसी को बॉडी बिल्डिंग पैशन हो, किसी का ट्रैवलिंग पैशन हो, या तो वो पैशन हो आपके पास, या तो आपका कोई ऐसा काम हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ मिसिंग है और आप कह रहे हो कि मैं काम करना भी छोड़ दूंगा, तो आप बेकार हो जाओगे। वर्क कीप्स यू एक्टिव, वर्क कीप्स यू हैप्पी, हैप्पी वर्क्स कीप्स यू हैप्पी। अगर आपको उस काम से प्यार नहीं है और आप वो करते जा रहे हो तो इट विल नेवर कीप यू हैप्पी। वही है सर। मतलब काम नहीं कर रहे हो तो दिमाग को, शरीर को जंग लग ही जाएगा इन एनी केस। राइट। बस सर, चलते हैं अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। बस एक दो सवाल है मेरे। सर, क्या कमाना ज्यादा आसान है, मनी या फेम, आपके हिसाब से? आज की डेट में फेम कमाना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आसान है फेम कमाना आज की डेट में। ओके। सर, आपका कोई गिल्टी प्लेजर है? टेक्नोलॉजी। मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद रहता हूँ। ये जो माइक आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, मेरे पास ऐसे सेम 4 हैं, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि यार अच्छी क्वालिटी आए जब मैं बोलूँ, राइट। तो टेक्नोलॉजी है। अब जैसे कि मैं हेडफोन्स की बात करूँ तो इस समय मेरे पास एक ये दिस इज़ मार्शल, और एक आपका ये बोस QC35, राइट। तो मुझे अच्छा लगता है जब सर, मैं ऐसी चीज़ें सैनाइजर वाला भी खरीदूँ। दिखा दो। हाँ, सनहाइज़र वाला भी यहीं, हाँ सॉरी, मेरे पास ये भी है, सनहाइज़र भी है, ये देखो, ये बहुत बहुत बढ़िया है। एयरपॉड्स भी दिखा दो। हाँ, एयरपॉड्स भी मैं दिखा देता हूँ। तो अभी इस टेबल पे बाई चांस जो है चारों के चारों जो है वो पड़े हुए हैं, इस पे तो प्रिंट भी हमने करवा रखा अपना 1991, राइट। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी है। मैं इसे क्या बोलूँ, मतलब मैं इसे गिल्टी प्लेजर नहीं, मैं कभी कभी इसे इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। बिकॉज यू नो, जिस चीज़ से मैं अपना समय बचा सकता हूँ, जिस चीज़ से मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ आज की डेट में, तो मैं पता है आजकल स्लीप कास्ट भी सुनता हूँ। व्हाट इज स्लीप कास्ट? मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, उसमें वो 45 मिनट्स का एक स्लीप कास्ट है, जिससे आप आराम से जब आप सोने जा रहे होते हो आंखें बंद करो, सुनते रहो। मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार आई थिंक आई डिज़र्व इट। जो मेहनत करी, जो पैसे कमाए, तो वो मैं कोई भाई सिगरेट दारू वगैरह में तो उड़ा नहीं रहा, राइट। इस तरह का मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, कोई एडिक्शन है नहीं अपने को। तो आई फील कि ये मेरे गिल्टी प्लेजर तो नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। और जैसे स्पीकर्स की बात कर लो तो मेरे पास स्पीकर्स बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे ब्रांड के बहुत सारे हैं, बट आई एन्जॉय इट। मैं सुबह उठते ही, आज की डेट में मेरा रूटीन है, सुबह उठूँगा और गाने चला दूँगा बढ़िया बढ़िया से, राइट। तो मुझे लगता है कि यार क्यों नहीं, वाई नॉट, राइट।
सो गिल्टी प्लेजर ही बोल सकते हो, बट मुझे मज़ा आता है इसको करने में ना। मतलब टेक्नोलॉजी को मैं बता रहा हूँ, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास इतनी चीज़ें होती हैं जितनी एक टेक यूट्यूबर के पास नहीं होंगी, राइट। ऑब्वियसली बिकॉज मोबाइल फ़ोन्स जो है वो हर तरह के मिल जाएंगे। मोबाइल फ़ोन्स छोड़ के अगर मैं बात करूँ, मैं लैपटॉप्स की बात करूँ, मैं एप्पल की किसी चीज़ की बात करूँ, तो एप्पल की मेरे पास ऐसी चीज़ें जो शायद किसी टेक यूट्यूबर के पास ना ही हो और उन्हें उसके बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं होगा। सो यस, टेक्नोलॉजी गिल्टी प्लेजर बोल सकते हैं। आजकल एक और है कॉफ़ी। तो मैं कॉफ़ी पे बहुत बहुत सारे पैसे उड़ा रहा हूँ अपनी कॉफ़ी पे। बहुत डिफरेंट तरह के डिवाइसेस हैं मेरे पास कॉफ़ी बनाने के लिए। बहुत डिफरेंट तरह की कॉफ़ी जो है वो मैं ट्राई करते रहता हूँ। अभी मुझे तलब लग रही है कॉफ़ी पीने की दोबारा से। तो कॉफ़ी यस, कॉफ़ी है, टेक्नोलॉजी है, ये 2 चीज़ें हैं। सो बस लास्ट सवाल जाने से पहले, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लास्ट डे ऑन दिस अर्थ एंड यू जस्ट हैव 3 lessons टू लीव बिहाइंड एज अ लेगेसी। कोई वीडियो नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 3 lessons हैं जो आपको छोड़कर जाने हैं एज अ लेगेसी ऑफ दी नीरज अरोड़ा। व्हाट आर दोज 3 lessons? पहला तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीखते रहें, क्योंकि आप जहाँ पे आप सीखना बंद कर देते हैं वहाँ पे आप जीतना बंद कर देते हैं। या ऐसा बोल लीजिए, जब सीखना शुरू करते हैं तभी आप जीतना शुरू करते हैं। सो जो मैंने चीज़ रियलाइज़ करी है ना, कि भाई लाइफ में आपको हर रोज़, मैं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं कुछ नया ना सीखूँ, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर को लेके हो, चाहे अपने किसी सब्जेक्ट को लेके हो, चाहे टेक्नोलॉजी को लेके हो। मैं तो सीखता हूँ, चाहे बुक से सीखूँ चाहे कहीं से भी सीखूँ। तो पहला लेसन तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि भाई सीखते रहें। दूसरी बात, फास्ट मनी के चक्कर में ना पड़े। अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, ये जो ओवरनाइट रिच बनाने वाली स्कीम्स होती है ना, इसमें ना पड़े आप। ये फैक्ट समझे, मैं ये समझाते समझाते मुझे लगता है दुनिया से निकल जाऊंगा भाई, तब भी लोगों को समझ नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट डे आपने बोला था, बस वो लास्ट डे में यही बोल रहा हूँ, भैया एक्टिव इनकम पे ध्यान दो। एक्टिव इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्टिव इनकम इज़ द अन्नदाता ऑफ पैसिव इनकम। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। पीपल जस्ट थिंक ओवर इट, आइशर मोटर के शेयर ने कितना रिटर्न दे दिया। अरे भाई, तुमने पैसे लगाने भी तो हैं आइशर मोटर के शेयर में, तभी तो वो रिटर्न देगा। वो पैसे कहाँ से लाओगे? एक्टिव इनकम पे मैं बोलूँगा सबको कि ध्यान दें। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि लाइफ को एंजॉय करें। एंजॉय करें इन द सेंस, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। जैसे कि मैं आज अपनी डॉटर को देखता हूँ तो म्यूज़िक है, मेडिटेशन है, वर्कआउट है, कोई भी एक चीज़, मतलब मेरे हिसाब से तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। इससे लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, एक बैलेंस बना के रखें लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने काम जो है वो, काम तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, बट अगर आप अब देखो ना, मैं भी काम कर रहा हूँ लेकिन मैं लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, म्यूज़िक भी सुनता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा मन है कि मैं गिटार बजाना सीखूँ। मैंने उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन वो ज़ीरो रिटर्न वाली येस बैंक साबित हुई हो। येस संक बैंक साबित कॉस्ट हो हुई, गई है वो। कहते हो येस बैंक साबित हुई है वो। तो इन चीज़ों पे पूरा पूरा अपना ध्यान दें, एक्टिव। और अगर आप इसी को मोनेटाइज कर पाएँ तो इससे अच्छा कुछ है नहीं, राइट। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ इनको फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और डेफिनेटली आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। Awesome. Thank you so much, sir. Really enjoyed it and love this entire experience. आपसे बातें सुनना, आपके experiences सुनना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया and I hope हमारे सभी listeners को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मज़ा मुझे इसे रिकॉर्ड करते टाइम आया. Thank you so much. चलिए जी शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। If you reached till the end, wow, you're a hustler. I hope you enjoyed the session and learned amazing things from Neeraj sir. Do check out Neeraj sir's YouTube channel Fin91, Neeraj Arora Vlogs, and also follow him on Instagram. I'll put the links in the description. Do hit the like button if you like this video. Subscribe to our YouTube channel and share this video with your best friends so that they start investing at the right age and do not delay the process of wealth creation. In the next video, we are going to talk about how to make money from the stock market. Till then, namaste, bye bye, and take care.